the roads of Delhi, where Basuri has been campaigning and connecting with the crowd, connecting with the people. Basuri, how do you feel you have to do, what you have to do about the people of Delhi and the development of Delhi? We were talking about the key issues and you wanted to talk at peace. I did, because I think it's a very important issue, and I didn't want to speak about it in the roadshow because obviously I was a bit distracted. I think because this is a national election, national issues take precedence. But there's one very important issue which is peculiar to Delhi, and that is the fact that there are many beneficial schemes which have been initiatives of the Modi administration, like Ayushman Bharat, like PM Awas Yojana. And unfortunately, the Honorable Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal ji, has disallowed their implementation in Delhi, I think purely out of political spite. Right. For example, in Ayushman Bharat, the beneficiary is granted a health cover annually of up to 5 lakh rupees. And now in Modi ji's 3.0, in his next 5 years of governance, he is pledged to ensure that the ambit of Ayushman Bharat is expanded to involve and include the transgender community, as well as every senior citizen above the age of 70. But Delhiites continue to be deprived because of Kejriwal ji's politics of selfish interest. So the first thing I'm going to do is ensure, even if it means knocking at the court's door, so be it. But I will ensure that all these very beneficial Modi administration schemes are implemented in Delhi as well, and Delhiites do not become victims of Aam Aadmi Party's selfish politics. So Aam Aadmi Party's selfish politics is one thing which you have to work upon. We also see a lot of conspiracy theories that are being floated by the Aam Aadmi Party whenever they are exposed, especially with our channel also. We've been exposing them with Operation Sheesh Mahal, Operation Black Dot, and Swati Maliwal case too. So every time they choose to misbehave with us. Of course, and a very recent incident that has happened is of attack on our crew that was reporting from Aam Aadmi Party. When you see all this, how do you feel as a politician? Should it be there at this level, this vendetta? Of course not. You're just doing your job. And frankly speaking, Aam Aadmi Party and the other members of India Alliance in a heartbeat proclaim these falsehoods about democracy being under threat. But it is they who are actually throttling democracy every time they try to muzzle the media. And I'm sorry, I'm shocked. They have gone to the extent of arresting a colleague of yours. Yes. And I remember the court adjudicated upon that FIR being blatantly being false, and there was a blatant disregard of procedure. I think it was a misuse of Punjab police. I remember they stopped a crew of your channel, your sister channel, from entering the Vidhan Sabha. They forgot that the Vidhan Sabha is not their private property, and recently they've even attacked your crew. It is condemnable, and I'm sorry, it's despicable. Yes, and if we talk about more issues in politics, we also see a lot of debate happening on Sanatan, around Sanatan. A lot of Sanatan baiters also there, haters also there. So how do you see all this? We've been seeing comments from, especially from the Congress party, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Nana Patole, all these leaders who've been slandering Sanatan. So how do you see this in this election, and what's the impact of Sanatan debates here? माननीय राहुल गांधी जी चुनावी सनातनी या चुनावी हिंदू, और यही होता है। आप ना सनातन संस्कृति के बारे में कुछ जानते हैं, आपको जो रिसर्च करके दे दिया जाता है ऊटपटांग, आप वही बयान दे देते हैं। जी, मैं आपको सच बताती हूँ, 2024 का चुनाव सनातनी सिपाहियों का चुनाव है। ये जो एक एक चोट विपक्ष लगा रहा है सनातन के अहम पर, सनातन के स्वाभिमान पर, सनातन की संस्कृति पर, इस एक एक चोट का जवाब होगा भारत की जनता का वोट। जी, और बहुत बात होती है, जैसे अखिलेश यादव को हमने देखा है केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इनकी रैलियों में भगदड़ मची हुई है, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो और अब की बार 400 पार का जो आप लोगों का जो क्लेम है या जो नारा है, उसको ये लोग पूरी तरह से चैलेंज करते आए हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष खुद जीतने की बात नहीं करती, अपनी सीटों की बात नहीं करती,
हमारी सीटों के अरिथमेटिक या गणित के पीछे और पड़ी। सबके अलग अलग डेटा है, सबके अलग अलग ऐसा है, आप सारे डेटाज एक तरफ रख दीजिए। 4 जून को मैं आपको बता रही हूँ, भाजपा 370 पार, एनडीए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बात इस बार बांसुरी हो रही है आरक्षण और स्पेशली रिलीजियस बेस्ड आरक्षण, मुस्लिम बेस्ड रिजर्वेशन. वी सीन ट्वीट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर also. He's tweeting videos of Rahul Gandhi where he's been claiming that you should have Muslim based reservation. How do you see this? Religion based reservation is unconstitutional. The Supreme Court of India has said this time and again. पर क्या करें, विपक्ष और खासकर की कांग्रेस पार्टी केवल विभाजन की राजनीति जानती है। 2024 आ गया, आपने क्या अपने ही इतिहास से कुछ सीखा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, 2024 में भी आप मेरे देश को धर्म, जाति, भाषा, रीजन की इन लकीरों पे फिर से देश को बांटने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, भाजपा बात करती है क्रिएशन ऑफ वेल्थ की और कांग्रेस बात करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। न्याय के पर्दे में, न्याय की आड़ में अन्याय करने पर तुली हुई है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि अपनी किसी मुहिम में सफल नहीं होंगे। भारत की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है आप कह रही हैं, मुस्लिम बेस्ड आरक्षण है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको लग रहा है विपक्ष यूनाइटेड है? क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हर साल एक कैंडिडेट होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। ऑपोजिशन इज इन अटर डिसऑर्डर। और रही बात आरक्षण की, तो मैं आपको एक बात याद कराना चाहूंगी, 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की है। संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने एक बात कही, मैं दोहरा रही हूं आपके माध्यम से, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद पार्लियामेंट में मौजूद है, कोई भी आरक्षण का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष वाले, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आरक्षण सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करा। आपको मैं याद करा दूं, देश में आपातकाल लगाने वाली, संविधान का मजाक उड़ाने वाली, संविधान को डिमिनिश करने वाली, सुप्रीम कोर्ट के हाथ पैर बांधने वाली केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। आपको क्या लग रहा है इस इलेक्शन में? लोकल इश्यूज तो दिल्ली के हैं, आप बता रहे हैं, आप MLAs have just not worked on the ground. National issues are also important. How do you see when you go to people, you talk to them, you mention both, and how do they connect to these issues, the national issues? The national issues, of course, as far as मैंने कहा ना, इतनी ज्यादा लोकप्रियता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण उनके कुशल नेतृत्व में अगाध विश्वास है। अगर कोई वेदना लोग व्यक्त करते हैं तो वो सारे के सारे मुद्दे वो हैं जो कि पार्षद या फिर विधायक के अधिकार के क्षेत्र के हैं। और बहुत दुख की बात है कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पिछले एक दशक से 10 के 10 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, ज्यादातर पार्षद 25 में से 20 पार्षद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, और तो भी किसी भी प्रकार का विकास का कार्य नहीं है। एक वचन जो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा मुद्दा लाते हैं जो कि विधायक के या पार्षद के अधिकार क्षेत्र में है, तो मैं आपको कभी भी ये कह के नहीं छटकूंगी कि ये सांसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपके साथ डटी रहूंगी आपकी आवाज को और पुरजोर करने के लिए। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम आपका वक्त ले रहे हैं काफी ज्यादा, और इस वक्त आप लोगों के बीच होती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आप उन लोगों से क्या कहेंगी? आप अगर सांसद हैं, भावी सांसद हैं, तो आप सबसे पहले क्या करने वाली हैं? आपका क्या प्लान है एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? मैंने कहा ना, सबसे पहले तो ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली की जनता मोदी जी की किसी भी जन कल्याणकारी योजना से इसलिए वंचित नहीं रहे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। दूसरी बात है, दिल्ली में ट्रैफिक की और पार्किंग की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। ओपन स्टैक पार्किंग इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर। जो ट्रैफिक के बॉटलनेक्स हैं उनको मैप करके उनके सॉल्यूशंस देखना चाहूँ। और अगर सच बताऊं, मोदी जी की गारंटी
जो सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, जो सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, आत्मविश्वास का आश्वासन है। इस गारंटी को एक एक दिल्ली के मतदाता तक पहुंचाने की गारंटी बांसुरी स्वराज की। बिल्कुल, ये गारंटी लेकर आपको याद है आप पिछले कुछ हफ्तों में कितने लोगों तक पहुंची होंगी और कितने लोगों तक पहुंचना है? वक्त थोड़ा कम ही है। नहीं, मुझे लगता है कि भगवान की बहुत कृपा है जी। काफी लंबा चुनाव था और हम लोग 31 के 31 मंडल जो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, उसमें मल्टीपल टाइम्स हो आए हैं। लेकिन जहां अगर नहीं ऐसा कोई भी कोना या छोर हो जहां नहीं पहुंची हूं, तो आपके जरिए एक करबद्ध प्रार्थना जरूर करूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में अवरोध ना, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, एक सशक्त राष्ट्र बने और इसी तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, तो 25 मई को जाइए, कमल के फूल का बटन दबाइए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए। तो आप इतना जरूर कहूंगी, आपकी गर्मी की छुट्टी 26 मई को शुरू हो सकती है। 25 मई का दिन तो राष्ट्र के नाम। बिल्कुल, 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं आप। आपको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर 3.0 के रोल में होंगे और आप उनकी सेना की एक मजबूत सिपाही होंगी? जी, मैं उनकी सेना की एक कार्यकर्ता होंगी और ये पद, कार्यकर्ता होने का पद, ये पदवी मुझसे मेरी आखिरी श्वास तक रहेगी मेरे साथ। बिल्कुल, और हम आपके साथ हैं और आपकी हर एक इलेक्शन के जो आपने कैंपेन किए, दिन में शायद 8 से 10 जगह अलग अलग आप जाते हैं, सुबह 6 बजे से तैयार होके और उसके बाद रात तक चलती है। So Bansuri Swaraj is quite open, candid, and she shares her plan, her vision, what she thinks for the people of Delhi, and we hope to see her soon when the results are announced on 4th of June. But she is appealing all the people of her constituency, New Delhi, all the 31 mandals you've traveled. 31 mandals. 31 mandals. And across RWAs. Okay. And something that I want to shout out to all the RWAs. Yes. जिताकर भेजेंगे तो MPLAD फंड का 25% केवल एक्सक्लूसिवली दिल्ली के RWAs के लिए रिजर्व रहेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, दोहरा रही हूँ आज। बिल्कुल, so 25% of the funds will be for RWAs of Delhi. RWAs of Delhi. And Bansuri Swaraj का ये inside interview, this inside detailed glimpse of her campaign we brought you only on Times Now, and we'll keep you updated on all the happenings till 4th of June and even after that, and we wish you all the best, Bansuri. Thank you. Really thank you for giving us so much of your time between your busy schedule, and hope to see you soon in a new role. Thank you. I'm very Keep grateful. watching Times Now. Stay ahead, and for all the election updates, be on Times Now, because this is India's election headquarters. Kane sir, your dinner. On a tile? But it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile lad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।